तेरी मेरी ये कहानी है अधूरी जिंदगानी। बिन तेरे ना जी सकेंगे, आजा जरा लौट आ। तेरे दर पे मैं आके खड़ा हूँ। इल्तिजा मेरी सुन ले जरा। तेरी मेरी ये कहानी है अधूरी जिंदगानी। बिन तेरे ना जी सकेंगे, आजा जरा लौट आ। देखो मायरा, हम नौशीन की कोई मदद नहीं कर सकते। तुम उस घर के लोगों को बिल्कुल नहीं जानती। जो बड़े एक बार सोच लें उसी पर अमल करते हैं। मशवरा देने की रवायत नहीं है वहां। आपने सूरत देखी है नौशीन की? आपने देखा है कि उसका चेहरा कितना उतर चुका है? बाजी, क्या आप में इतनी हिम्मत भी नहीं कि आप नूर अंकल से बात करें? या फिर जमाल भाई? क्या जमाल भाई अपनी बहन के साथ इतना सब कुछ होते हुए देख सकते हैं? कोई नहीं है वहां उसके बारे में सोचने वाला। मायरा, तुम कैसे गुजारा करोगी यहाँ? मैं अपने बारे में क्या सोचूं? तुम बोझ समझी जा रही हो यहाँ। आरफा से बात हुई थी मेरी। वो सोच रही है कि तुम कोई नौकरी कर लो ताकि अपना गुजारा कर सको। भाभी क्या सोचती है मुझे जिस बात की कोई परवाह नहीं। मायरा, अब वो हालात नहीं रहे। अम्मी नहीं रही। तुम अकेली हो यहाँ। मैं कहाँ अकेली हूँ बाजी? आप हैं मेरे साथ, जमाल भाई हैं। हर कोई अपने लिए खुद होता है मायरा। कोई यहाँ किसी का साथ नहीं देता। एक माँ बाप ही होते हैं। जब तक वो आपके साथ होते हैं, हर तकलीफ, हर गम आपसे दूर रहता है। लेकिन जैसे ही उनका साया आपके सरों से छिन जाता है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। और फिर खुद ही उन अंधेरों का मुकाबला करना पड़ता है। मम्मी हमें क्यों छोड़ के गई बाजी? ऐसा ही होता है। कुदरत का निजाम ऐसा ही होता है मायरा। अम्मी तो हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई। उनकी जगह हम हैं, उनके नाम लेवा। लेकिन मैं कितनी बदनसीब हूं कि मेरे बाद तो मेरा कोई नाम लेवा भी नहीं होगा। मेरी किस्मत औलाद जो नहीं। बाजी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? आप देखना, खुदा सब बेहतर करेगा। खुदा सबकी सुनता है। यकीनन वो आपकी भी सुनेगा। आप ऐसे मायूस मत हो। सब कुछ बेहतर कर देगा वो।
السلام علیکم سر، یہ آپ کا لیٹر سائن کر دیے گا یہاں پر. تھینک یو. مائرہ کے نام؟ کس کا لیٹر؟ بابا جان یہ وہیں سے آیا ہوگا جہاں مائرہ نوکری کے لیے انٹرویو دینے گئی تھی. آپ فکر نہ کریں، میں اسے بتا دیتی ہوں. واقعی باجی آپ مذاق تو نہیں کری نا میرے ساتھ؟ میں کیوں مذاق کروں گی؟ بابا جان سے بات ہوئی ہے میری، انہوں نے بتایا کہ اس کمپنی سے کال لیٹر آیا تمہارے لیے. ہو سکتا ہے کہ ابا جان نے صحیح سے نہ پڑھا ہو. اتنا دماغ نہیں ہے میرے پاس کہ میں تم لوگوں کو بار بار سمجھاؤں. اگر میری بات پر نہیں ہے یقین تو بابا جان کو کال کر کے خود ہی پوچھ لو. ارے دماغ کھا جاتی ہیں. مائرہ، مجھے لگتا ہے کہ یہ لیٹر اسی لنگور کی کمپنی سے آیا ہے جو ہمیں شادی میں ملا تھا. اور کہاں سے آیا تھا نوشین؟ صرف وہی تو گئی تھی میں انٹرویو کے لیے. امپاسبل. تم شادی والے دن اس کی نقلیں اتار رہی تھی. آئی تھنک اس نے ریجیکشن لیٹر بھیجا ہوگا. خیر تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں باقی میرٹ پہ پوری اتری ہوں. میرٹ؟ کون سا میرٹ؟ یہ بات سنو، مجھے پورا یقین ہے کہ ابھی بھی پاکستان میں میرٹ والی جو گیم ہے نا وہ اسٹرانگ ہے، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو سارے ادارے بند ہو جاتے. مائرہ، میرا خیال ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ مذاق کیا ہے، اور جو کچھ تم کر آئی تھی اس دن، اس کے بعد اس نے تمہیں بدلہ لینے کے لیے بلایا ہوگا. سنو، بدلہ تو مجھ سے تب لے گا نا جب میں وہاں جاؤں گی. اب تو مزہ آنے والا ہے. مذاق؟ کیسا مزہ؟ میں نے یہ سب کچھ نا صرف ریحان کو غلط پروف کرنے کے لیے کیا تھا. کہتے رہتا تھا کہ مجھے جاب ہی نہیں مل سکتی. کیوں نہیں مل سکتی؟ مزہ آئے گا. مجھے فون کر. کیا کر رہی ہو؟ ریحان کو فون کر رہی ہوں. مائرہ، پتا بھی ہے تمہیں کہ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، واقعی نہیں پتا یا جان بوجھ کر انجان بن رہی ہو؟ میں سمجھی نہیں کہ آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں. تمہاری بہن جب سے کراچی سے آئی ہے نا، ہر وقت فون پر باتیں کرتی رہتی ہے. جب دیکھو کالز، فون پر باتیں، بس. تو کیا ہوا اگر وہ مجھ سے فون پر بات کر لیتی ہے تو؟ تم سے یا تمہارے دیور سے؟ آپ حد سے زیادہ بڑھ رہی ہیں. آنکھیں کھولو تو دکھائی دے گا. بہن کی محبت میں اس قدر اندھی ہو جاؤ گی تو پانی سر سے گزر جائے گا. اور ٹھیک ہے، اگر اس کی خوشی اسی میں ہے تو کر دو ریحان سے شادی اس کی. بس بہت ہو گیا. میں یہاں آپ کی باتیں سننے کے لیے نہیں آئی ہوں. بیٹھ جاؤ. بیٹھو. اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے تو خود دیکھ لینا، اور اگر میں غلط ہوئی تو جو چور کی سزا وہ میری. آپ مائرہ کو نا غلط سمجھیے. اس کی عادت ہے وہ ہر کسی سے فری ہو جاتی ہے، بات بات پر بک بک کرتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہی ہو اسے. کہا نا، میری بات غلط نکلے تو یہی ہوں، جو چاہے سزا دینا. لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے، خاندانی ہونی چاہیے، اور اگر ماں باپ بھی اکلوتی ہو تو اور بھی اچھی بات ہے. رشتے تو بہت ہیں، مگر ہر لڑکی میں ہر خوبی نہیں ہو سکتی. خوبصورت ہو تو غریب گھرانے کی ہو سکتی ہے، یا پھر کم پڑھی لکھی. کم پڑھی لکھی ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن گھرانہ غریب نہیں ہونا چاہیے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ آسیہ ہے، رشتے کرواتی ہے. اوہ اچھا اچھا اچھا. یہاں؟ ہاں میں نہیں بلایا. اب ریحان کو ساری عمر میں نے کمارا تو نہیں بٹھانا نا. اچھا سا رشتہ مل جائے یہی چاہیے. اوہ ہاں ہاں اچھا اچھا اچھا. اچھا تو پھر میں چلتی ہوں، اگلی بار اور تصویریں لے کر آؤں گی. رشتہ آپ کی پسند کا ہوگا لیکن فیس میری پسند کی. بس اچھا سا رشتہ مل جائے تو منہ مانگی فیس ملے گی.
हाँ तो फिर आ रही हो वापस कराची? और वो तुम्हारा ऑफिस तुम्हारे बगैर बहुत उदास हो गया होगा ना, आके ज्वाइन कर रही हो? मेरी बात सुनो, ये नौकरी ना फिजूल लोग करते हैं, मैं कोई नौकरी वोकरी नहीं करूंगी। हाँ हाँ, आपके तो अब्बा जी की जमीनें हैं ना, और जमीनों से गंदम आ जाती है, तो आपको नौकरी करने की क्या जरूरत? बड़ा चहक रहे हो, नौशीन भी हंस रही है तुम्हारी बातें सुन के। ओए, तुमने फोन का स्पीकर ऑन किया हुआ है? तो आपको क्या एतराज है? मैंने सोचा क्यों सिर्फ मैं ही आपकी बेवकूफाना बातों को एंजॉय करूं, नौशीन भी थोड़ा सा हंस ले। वैसे तुम लोगों ने ना बहुत ज्यादती की है इस बेचारी के साथ। क्या बकवास कर रही हो? यार मैं क्या करता, मैंने तो बहुत कोशिश की, लेकिन मामू जान को कौन समझाए। सुनो, वैसे मुझे ये भी सुनने में आया है कि तुम उस लड़के से मिले भी जिसे नौशीन पसंद करती थी। हाँ अच्छा है, वो आया था मेरे पास दोबारा, मुझसे पूछ रहा था कि नौशीन का नंबर क्यों बंद है। तुमने क्या कहा? वही जो सच है, मैंने उसे समझाया कि यार नौशीन का ख्याल दिल से निकाल दे, आई मीन इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा सुनो, मैं जा रही हूँ, बाजी आने वाली है, बाय। आ जाओ रेहान। भाई आपको कैसे पता चला कि मैं हूँ? बस देख लो, पता चल ही गया मैं, क्योंकि फुप्पो तो दरवाजा नॉक करके आती नहीं है। बैठो तुम। और अब्बा जान मेरे कमरे में आते नहीं है, और नौशीन यहाँ पे है नहीं, बाकी कौन बचा? सिर्फ तुम। और तुम भी यहाँ पे तभी आते हो जब कोई काम होता है। हाँ भाई, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो। भाई नौशीन, मुझे ऐसे लग रहा है कि नौशीन के साथ ज्यादती हो रही है। खुलकर कहो, क्या कहना चाहते हो? ये दानियाल कहाँ से आ गया? दानियाल कहाँ से आ गया मतलब? आपको नहीं लगता कि मामू जान इस मामले में जरा जल्दबाजी से काम ले रहे हैं? पहले अपनी पूरी बात खत्म करो, उसके बाद मैं तुम्हें जवाब देता हूँ। भाई मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नौशीन की शादी वहां होनी चाहिए जहां वो चाहती है। बस जी। अब ये बताओ रेहान कि एक तरफ वो लड़का है जो नौशीन के साथ उसके कॉलेज में पढ़ता है, और एक ये दानियाल है जिसका अपना बिजनेस है, अमीर है। नौशीन का फ्यूचर किसके साथ महफूज है? फ्यूचर? क्या कह रहे हैं आप भाई? आई मीन फ्यूचर के बारे में भला किसी को क्या पता कि क्या होना है? अगर मुस्तकबिल के बारे में कोई जान सकता है या किसी को कुछ पता चल जाता तो मेरे ख्याल से कभी भी किसी का कोई फैसला गलत साबित ना होता ना। तो ये बात जाके अब्बा जान को समझाओ, मुझे समझाने से कोई फायदा नहीं। मैंने मामू जान से बात की, लेकिन मैं उन्हें समझाने में नाकाम रहा, तभी तो आपके पास आया हूँ। तो फिर मैं क्या कर सकता? अगर फर्ज करो कि मैं तुम्हारी बातों में आके उनसे जाके बात भी करता हूँ, नतीजा नहीं बदलेगा। लेकिन भाई कोशिश करने में क्या हर्ज है? कोशिश तो की जा सकती है ना। तुम्हें नौशीन ने ये कहा है? नौशीन ने कहाँ से कहनी थी? उस बेचारी को तो चुप लग गई, ऐसे जैसे जाल में आई चिड़िया। रेहान मैं मजबूर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। यार भाई इतनी बेहिसी, आप बड़े भाई हैं उसके, वो बहन है आपकी, अगर आप उसके लिए फाइट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, इतने जज्बाती क्यों हो? जमाल भाई मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप कह रहे हैं। आप हमारे बड़े भाई हैं, बड़ा सहारा है हमें आपका, और आप इस तरह से। बड़ा हूं इसीलिए कह रहा हूं। मैं जानता हूं कि अब्बा जान और पुपी नसीमा के फैसले के खिलाफ आप नहीं जा सकते, और जो भी फैसला करेंगे हमें मानना पड़ेगा, बदल नहीं सकता। भाई प्लीज। माया
मायरा, मायरा, यहाँ हूँ, वॉशरूम में। अच्छा। हेलो जी, कौन? वकार, मैं नौशीन। नौशीन? मैंने किसी और के नंबर से कॉल की है। पलट के इस नंबर पर दोबारा कॉल मत करना। कहो, कैसे हो तुम? नौशीन, कहाँ हो तुम? कहाँ चली गई हो? भाभी के साथ लाहौर आई हूँ। उनकी अम्मी की फौतगी हो गई थी। हाँ, तुमने बताया था, मगर ये तो नहीं बताया था कि तुम लाहौर चली जाओगी। मुझे खुद भी नहीं मालूम था। तुम्हें पता है, मैंने कॉलेज आना बंद कर दिया क्योंकि तुम नहीं आ रही। क्यों वकार, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इनफैक्ट अपनी पढ़ाई तो मुकम्मल करो। नौशीन, प्लीज वापस आ जाओ। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। देखो वकार, ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरा और तुम्हारा एक होना नामुमकिन है। ना ही मैंने तुमसे कोई वादा किया और ना ही कोई पैमान बांधा। नौशीन, किससे बात कर रही थी? वो भाभी। क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे लगा कि तुम गुस्से में किससे कुछ पूछ रही हो। ऐसा तो नहीं है कहीं तुम लोग मेरे सामने बात करने से हिचकिचा रहे हो? नहीं, नौशीन, रेहान का फोन था। क्या कह रहा था कि कॉलेज से छुट्टियां मंजूर हो गई? खैर, उस्मा, तुम्हें फारूक बुला रहे हैं। मुझे क्यों बुला रहे हैं? मुझे क्या पता, खुद जाके पूछ लो। मुझे तो कहा कि उस्मा को बुला कर लिया। हाँ, चलें। ये क्या खेल तमाशा शुरू किया तुम दोनों ने? और मैं क्यों भाभी से कहूँ कि नौशीन से मैं बात कर रहा था? रेहान, आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम इतनी सी बात बोल दोगी तो बाजी को यकीन आ जाएगा कि नौशीन तुमसे बात कर रही थी। जबकि बात तो वो वकार से कह रही थी, है ना? हाँ, ऐसा ही है। देखो मायरा, तुम खामखा इस मामले में मत पड़ो। देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो। जब ये बात खुलेगी तो सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। मेरी बात सुनो, नौशीन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अगर उसकी खातिर मैं इतनी सी कुर्बानी दे दूंगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। यार, ये कुर्बानी देने से कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों नहीं लगी एकदम से? कह दूं? कहो, मैं भी तो सुनूं। बताओ, बोलो अब। मायरा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हारे बारे में कोई गलत बात करे। क्या हो गया? बात कर भी लो अब। लाइन तो नहीं कट गई? हेलो हेलो। जी रेहान भाई, मैं नौशीन बात कर रही हूँ। हाँ नौशीन, बोलो, क्या बात है? जी वो मैं भूल गई, पता नहीं मुझे क्या बात करनी थी। ये आप मायरा से बात करें। तुम अपने होशो-हवासी खो बैठी हो। बोला है मैंने, मान लेगा बाजी के सामने, कुछ नहीं होता।
अच्छा रेहान सुनो, मैं फोन रख रही हूँ इससे पहले कि बाजी आ जाए। अच्छा सुनो 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 सुनो, तुमने वो सुना जो मैंने कहा? सुन लिया मैंने। यही कहा ना तुमने कि अगर मैं नौशीन की साइड लूंगी तो मैं बुरी बन जाऊंगी। कोई बात नहीं, मेरा प्रॉब्लम है वो। रख रही हूँ मैं फोन, बाय। मायरा, 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 क्या हो गया भाई? सर पे सींग आ गए हैं क्या मेरे? अभी तक तो नहीं निकले थे, लेकिन अब लग रहा है कि निकल आए हैं 2 बड़े बड़े सींग। शीन की बच्ची, ये तो कब से मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर। बाद में देखूंगी मैं तुम्हें। मजलूम बनी घूम रही हो ना अभी। अल्लाह ताला खुश होते हैं मजलूमों की मदद करने से और उन्हें माफ करने से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल से मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे वो घर पे ही होंगे। जी एक्चुअली वो ज़रा किसी काम से बाहर गए हैं, अभी आ जाते हैं। कैन आई टॉक टू यू? मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, अगर आप बुरा ना माने। या श्योर, फरमाइए। अंदर आए, बैठ कर बात करते हैं आराम से। आप जो कहना चाहते हैं कह दीजिए, इसमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं। नहीं, एक्चुअली मैं ये सोच रहा हूँ कि जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या मैं आप पे ये यकीन कर सकता हूँ कि वो मेरे और आपके बीच में रहेगी? जी आप बिल्कुल फरमाइए। आपने पहले ही इतना सस्पेंस क्रिएट कर दिया है, मुझसे अब खुद नहीं रहा जा रहा। नौशीन, एक्चुअली नौशीन आपसे शादी नहीं करना चाहती। अच्छा, और ऐसा क्यों है? जी, मेरा कहने का मकसद है कि क्या वो किसी और को पसंद करते हैं? एग्जैक्टली यही बात है। उसका एक क्लास फेलो है। तो अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? ये तो अब आप बताएं, आप क्या चाहते हैं? आई मीन सच्चाई आपके सामने आती है, अब आप बताएं आपका क्या इरादा है? और आप सच कह रहे हैं, इस बात की तस्दीक कौन करे? क्या मतलब? आप समझ रहे हैं कि इतनी सीरियस बात मैं मजाक में कह रहा हूँ या मैं झूठ बोल रहा हूँ? देखिए, मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा जिससे आपकी दिल आजारी हो। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि वाकई अगर नौशीन किसी और को पसंद करती हैं तो ये बात तो अंकल को भी मालूम होना चाहिए, जबकि अंकल ने ही अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ने की मुझसे ख्वाहिश की। और अगर उन्होंने ऐसा किया है तो सोच समझ के किया हो। बट डोंट यू थिंक सो कि ये नाइंसाफी? आई मीन जिस लड़की के साथ आप अपनी सारी जिंदगी गुजारने जा रहे हैं वो आपको चाहती नहीं। चाहत साथ रहने से होती है। हो सकता है आने वाले वक्त में उसकी चाहत बन जाए। लेकिन ये तो आपका गुमान है, यकीन तो नहीं। देखिए, यकीन और गुमान का फर्क पहले जाहिर नहीं होता, वक्त ही फैसला करता है। और गुमान से ही यकीन का रास्ता भी निकलता है। एक्चुअली मुझे लगा था कि शायद मैं आपसे बात करूंगा तो आप मेरी बात को समझेंगे और मे बी यू विल हेल्प अस आउट, लेकिन अफसोस आई एम डिसअपॉइंटेड। Well, you don't need to be disappointed. आपने जो कुछ भी मुझसे कहा, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं किसी और से नहीं कहूँ। मायरा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हारे बारे में कोई गलत बात करे।
नौशीन, नौशीन, क्या है? कहाँ गुम हो तुम? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। तुम ना कुछ सोच रही हो, मैं नोट कर रही हूँ। जल्दी से बताओ क्या सोच रही हो? नहीं, बस ऐसे ही। मुझे नहीं बताओगी? मायरा, ये बताओ कि क्या तुम किसी से मोहब्बत करती हो? नौशीन, तुम्हें ये ख्याल कहाँ से आया? बताओ ना, कोई है तुम्हारी जिंदगी में? मेरी जिंदगी में तो कोई नहीं है, ना ही कोई आने वाला है। क्यों? तुम्हारे सीने में दिल नहीं है? दिल तो मेरे सीने में है, लेकिन मुझे उसे कंट्रोल करना आता है। और फिर तुम्हें पता है और फिर? मुझे नहीं पता। वैसे पहले मैं समझती थी कि तुम एक सीधी सादी सी लड़की हो, जो भी दिल में आए कह देती हो, लेकिन शायद मैं गलत थी। तुम तो अपनी दिल की बातें छुपा कर रखती हो, किसी से नहीं कहती। नौशीन की बच्ची, ये तुम मेरे बारे में इतना ज्यादा क्यों सोच रही हो? इतना ज्यादा एनालिसिस क्यों कर रही हो? वैसे मायरा, तुम सोच सकती हो कि इस दुनिया में कोई ऐसा भी है जो तुम्हें पसंद करता है। क्यों नहीं होगा भाई? तुम हो ना, तुम मुझे पसंद नहीं करती क्या? मायरा, मजाक नहीं, बिल्कुल सीरियस बात कर रही हूँ। देखो, जिन मायनों में तुम पूछ रही हो ना, उन मायनों में तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मायरा से अपनी मोहब्बत का इजहार कर सके। मुझे तो लगता है मैं सबको डरा ही देती हूँ। अब खुद सोच लो, कितनी बेचारी हूँ मैं। हो सकता है कि किसी ने इजहार किया हो और तुम तक आवाज ना पहुंची हो। सुनो, तुम्हारे पास कोई और टॉपिक नहीं है? बोर करके रखी है मुझे। वैसे मैं एक शख्स को जानती हूँ जो तुमसे मोहब्बत करता है। बकवास। बकवास नहीं, सीरियस। किसकी शामत आई है? चल जाएगा पता। मुझे जल्दी से बताओ, मुझे बताओ। अंकल, ये वो कागजात हैं और अब वो प्लॉट नौशीन का नाम। ये देखो, कितनी ज्यादती की ये दानियाल। इतनी मेहरबानी, इतनी मेहरबानियां कौन करता है? वैसे एक बात माननी पड़ेगी दानियाल, बर्फ पिघलाना तुम खूब जानते हो। जी मैं समझा नहीं। लेकिन मैं सब कुछ समझ गई हूँ। क्यों? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? क्या बात है नसीमा, तुम कुछ कहना चाह रही हो? मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया। दानियाल की तारीफ कर रही हूँ, माशाल्लाह से बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा ये। हाँ, कामयाब बिजनेसमैन तो है। बिजनेस के लिए जो जुर्रत चाहिए होती है वो इसमें है। मायरा ने सुना या नहीं सुना कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ? कहीं नौशीन ने तो नहीं सुन लिया? मायरा, बात यह है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें बुरा कहे। सो रही हो? सो रही हो क्या? कोशिश कर रही हूँ सोने की। तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या?
नहीं। भूख लगी है तुम्हें? नहीं। तो फिर क्या हो गया तुम्हें? मायरा, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हमारे साथ कराची वापस चलो। मेरे कराची जाने का तुम्हारी नींद से क्या ताल्लुक? उसका कोई ताल्लुक नहीं है, बस वैसे ही तुम वहीं आ जाओ। मैं अब क्या करूं वहां आकर? पहले तो मैं बाजी की देखभाल की वजह से वहां थी, अब मेरा वहां क्या काम? बहुत कुछ है वहां पे, और अब तो तुम्हारा कॉल लेटर भी आ गया है, चाहो तो वहां नौकरी कर लो। ये तो बहुत दूर की बात की तुमने। गलत मशवरा नहीं दे रही मैं तुम्हें। सो जाओ यार प्लीज, तुम अपने बारे में सोचो, मेरी फिक्र छोड़ दो। वो रेहान भाई तुमसे मोहब्बत करते हैं। क्या? ये कैसा बेहुदा मजाक था, पागल लड़की। मायरा, ये मजाक नहीं है, बिल्कुल सच है। जब उनका फोन आया था और मैंने तुमसे फोन ले लिया था, तो उन्होंने यही कहा कि मायरा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरी बात सुनो नौशीन, आजकल के जमाने में ना कोई भी अपनी मोहब्बत का इजहार आई लव यू, मुझे तुमसे प्यार है कह के नहीं करता। मुझे बेवकूफ नहीं बनाओ, और अब मुझे सोने दो, मैं भी सो रही हूँ। पकड़ो अपना बिलो। उस्मा से बात करने के बजाय तुम उसकी उल्टा बात मानकर आ गए। मैंने कौन सी उसकी बात मान ली, और फिर मुझे लगता है कि इस बात को रहने ही दो। कौन सी बात? आप लोग कोई बात कर रहे थे? उस्मा, कोई बात नहीं, मेरी और आरफा की बात है। उस्मा, फारूक कह रहे हैं कि हम ये घर बेच के कोई दूसरा घर ले लेते हैं। मैंने कहा उस्मा घर पर है, उससे भी मशवरा कर लो। क्यों बेचना चाहते हैं इस घर को? जिस घर में पले बड़े जवान हुए, अब वही जगह अच्छी नहीं लग रही। ये बात तो तुम फारूक से खुद ही पूछ लो। ये मकान अम्मी के नाम है, और मैं जानती हूं कि अम्मी ने कितनी तकलीफों के साथ इस घर को बनाया। अम्मी की बहुत सी यादें वाबस्ता हैं इस घर से। उस्मा, यादों के साथ तो नहीं जिया जा सकता ना। मुझे हैरत हो रही है कि ये क्यों खामोश हैं। आप तो कह रही थी कि फारूक मकान बेचने की बात करना चाहता है, लेकिन वकालत तो आप कर रही हैं। क्या मतलब है? क्या मैं कुछ कह नहीं सकती? ये मकान मेरी माँ के नाम है। फारूक, मैं और मायरा इस घर में हिस्सेदार हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मेरा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। आरफा, खामखा क्यों ऐसी बात कर रही हो जिसका यहाँ जिक्र ही नहीं हो रहा? ये सिर्फ तुम्हारा घर है। लेकिन इस मकान में फारूक, मैं और मायरा हिस्सेदार हैं। अब आप कुछ बोलेंगे भी या चुप रहेंगे? उस्मा, आरफा की तजवीज़ बुरी नहीं है। इसका मतलब है कि हम इस घर की अच्छी कीमत ले सकते हैं। इसको बेचकर हम 2 घर ले लेंगे और एक घर किराए पर दे सकते हैं। फिर तो आरफा की तजवीज़। तजवीज़ तो आप ही की थी ना, मैंने तो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाई है। मुझे सब नजर आ रहा है कि कौन किसकी हाँ में हाँ मिला रहा है।
मेरी बात सुनो, ये तुम बहन भाइयों का आपस का मसला है। इस घर को रखना है, बेचना है, जो करना है मेरी बला से करो, पर मैं इस घर में किसी को रख के पाल नहीं सकती। तो निकाल दो अपने चौर को इस घर से बाहर। इनकी बात नहीं कर रही हूं मैं। तो फिर किसकी बात कर रहे हो? हम तो मेहमान हैं, कुछ दिन यहाँ रहेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। जब तक यहाँ रहने का, खाने पीने का जो लेना है ले लो। तुम तो मेहमान हो, चली जाओगी, मगर वो दूसरी वो मायरा, काश तुम बहनों को संभालने के काबिल होते। बीवी को तो संभाल ले पहले।